Hello friends, we are back with a new video of Unit 2 ecosystem, and today we will be going to talk about the type of ecosystem जिसको आप हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार. What different kind of ecosystems we have. So as we know, a ecosystem or the paristhiki tantra is the structure and functional unit of ecology. Means it will be having a structural and functional unit of ecology where the living organism interact with each other and the surrounding environment. So the organism will be interacting with each other as well as the environment. In other words, an ecosystem is a chain of interaction between organism and their environment. And this term ecosystem was first coined by Sir A.G. Tensley, right? He was an English botanist in 1935. So he was the man who coined the term ecosystem. Moving ahead, an ecosystem can be as small as an oasis in a desert or as big as an ocean. समुद्र के जितना भी हो सकता है. Spanning thousands of miles, and there are two type of ecosystem. दो तरह के होते हैं. एक तो terrestrial ecosystem, right? जो आपके normal अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, मतलब in the sense terrestrial ecosystems are those ecosystems where we have normal vegetation such as forest, etc. Then we have aquatic ecosystem, जो water bodies वाले ecosystem है आपके. They will be the part of it. Now let's see these types in detail, which will be a part of our discussion in depth, because these details are quite important, right? So first let's talk about the terrestrial ecosystem, right? Terrestrial ecosystem we will talk about, right? So terrestrial ecosystems are exclusively land based, जो धरती पे रहेंगे और किस तरह के रहेंगे, लैंड बेस्ड, जैसे ग्रास लैंड है आपका या फॉरेस्ट है, right? Such kind of things, these kind of ecosystem, and these are different types of terrestrial ecosystem distributed around the various geological zone of earth. जो different zones हैं अर्थ के ऊपर जियोलॉजी के, there they have been distributed and they are as follows. So these are the types which I will be showing. So the first type is forest ecosystem, then grassland ecosystem, tundra ecosystem, desert ecosystem. तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम जैसे घास के मैदान, जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, जो वन वाले आपके पारिस्थितिकी तंत्र है. उसके बाद ग्रासलैंड हो गए, घास के मैदान. फिर टुंड्रा इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है, जो आपके मरुस्थलीय इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है उनको. तो one by one we will be going into the details of these. So forest ecosystem, right? Forest ecosystem जो आपके वन्य पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं. So a forest ecosystem consists of several plants. बहुत सारे प्लांट मिलेंगे, पौधे बहुत सारे मिलेंगे. Animals and microorganisms, सूक्ष्म जीव भी मिलेंगे, सूक्ष्म जीव, that live in coordination with abiotic factor. Abiotic factor में आपका क्या आ गया? Abiotic factor में आपका क्या आ गया जी? Soil, water, sunlight, moisture, etc. of the environment. Forest helps in maintaining the temperature of the earth. ये बहुत important regulatory part है forest का, कि they regulate the temperature of earth. And are the major carbon sinks. कार्बन की सबसे बड़ी सिंक है, मतलब कार्बन को सोखने के लिए टेरेस्ट्रियल में सबसे बड़े सिंक हैं, राइट? सो ये ध्यान रखिएगा, मेजर कार्बन सिंक है एक तरह से, राइट? वैसे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो कार्बन सिंक होती है वो ओशियन होती है, फिर उसके बाद सॉइल होती है, और फिर आते हैं फॉरेस्ट. लेकिन यहाँ पे क्योंकि वी आर स्टडिंग अबाउट द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, so that's why we are saying that the forests are the one of the major carbon sink on terrestrial surface, right? Then we will talk about grassland ecosystem. Grassland ecosystem जो होते हैं, जो आपके घास के मैदान होते हैं, right? ठीक है, उसपे भी different अलग अलग तरह के हैं. So in a grassland ecosystem the vegetation is dominated by grasses. घास रहती है mainly, and herbs. Temperate grasslands, राइट? जो टेम्परेट ग्रासलैंड, जिसको आप शीतोष्ण घास स्थल कहते हैं, फिर सवाना आ गए ग्रासलैंड, और सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द ग्रासलैंड इकोसिस्टम. ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बेसिकली टाइप है, जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, शीतोष्ण घास के मैदान जिसको आप बोलते हैं, या फिर सवाना ग्रासलैंड है. दीज आर द टाइप ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, मतलब इसी की वैरायटी है एक तरह से देखा जाए.
देन वी हैव टुंड्रा इकोसिस्टम। टुंड्रा का क्या है? अब टुंड्रा इकोसिस्टम की अगर आप बात करेंगे, राइट, सो टुंड्रा इकोसिस्टम आर डिवॉइड ऑफ ट्री, ट्री नहीं होगा, एंड आर फाउंड इन कोल्ड क्लाइमेट, ठंडे प्रदेशों में पाएंगे, वेयर रेनफॉल इज स्केयर, बहुत कम बारिश होगी, एंड दीज आर कवर्ड विद स्नो फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर कवर्ड विद द स्नो और आइस, बर्फ जमी रहती है इनमें। द इकोसिस्टम इन द आर्कटिक एंड माउंटेन टॉप्स एंड टुंड्रा टाइप, तो जो भी आपको आर्कटिक में मिलेंगे या पहाड़ों पे मिलेंगे, माउंटेन्स में, दे आर ऑफ टुंड्रा टाइप ऑफ इकोसिस्टम, राइट, टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र जो होते हैं वो आपको मिलेंगे। देन वी हैव डेजर्ट इकोसिस्टम, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, राइट, जिसको आप बोलेंगे हिंदी में मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। सो डेजर्ट्स आर फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये तो आपको पता ही है। देयर आर रीजन्स विद वेरी लिटिल रेनफॉल, बहुत कम रेनफॉल जहाँ पे होता है। द डे आर हॉट एंड द नाइट आर कोल्ड, दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होगी, रात को बहुत ज्यादा ठंड होगी। देयर आर टू टाइप ऑफ डेजर्ट, हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, गर्म मरुस्थल और ठंडे मरुस्थल। तो ये इनके डिफरेंट टाइप्स है डेजर्ट इकोसिस्टम के। उसके बाद एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जो आपका जहाँ पे वाटर बेस्ड इकोसिस्टम होंगे, ठीक है, तो इसकी बात करेंगे हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की। So aquatic ecosystems are ecosystem present in the water body and these can be further divided into two type, दो तरह के इकोसिस्टम में फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम को। वन इज कॉल्ड एज फ्रेश वाटर, जो एकदम आपका फ्रेश वाटर होता है, प्योर जल जो होता है, राइट, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, और एक मरीन जो सॉल्टी वाटर होता है आपका, ठीक है, मरीन वाटर इकोसिस्टम। सो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की अगर बात करें, सो द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इन एक्वेटिक इकोसिस्टम दैट इंक्लूड लेक, इसमें आपकी सारी की सारी जो झील है वो आ जाएंगी, पॉन्ड्स, तालाब, रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड वेटलैंड्स, जो आपके वेटलैंड है इसमें सारे वो आएंगे। दीज हैव नो सॉल्ट कंटेंट, देखिए देख रहे हैं ना कि कोई भी इसमें सॉल्टेड कंटेंट नहीं होगा पानी के अंदर, इन कंट्रास्ट विद द मरीन इकोसिस्टम। वही मरीन इकोसिस्टम में जो वाटर होगा आपका सॉल्टेड होगा, यहाँ पे वाटर आपका सॉल्टेड नहीं होगा, प्योर वाटर होगा without any salt. Then marine ecosystem में ही we will continue. Marine ecosystem, the marine ecosystem include seas and ocean. यहाँ पे समुद्र आपके आएंगे, और जो मरीन इकोसिस्टम है क्योंकि सॉल्टेड वाटर है ना, and these have a large salt content, बहुत ज्यादा salt content होता है मरीन इकोसिस्टम में, मतलब जो वाटर होगा that is salty water. मरीन इकोसिस्टम में the water in the ecosystem is salty water, right? एंड ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जो है आपकी जैव विविधता वो भी बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हमने देखा इन कंपैरिजन टू लेक, पॉन्ड, रिवर, राइट, स्ट्रीम्स एंड वेटलैंड, इनकी तुलना में काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, या कंपैरेटिवली बायोडाइवर्सिटी इज हायर इन मरीन इकोसिस्टम, राइट। नेक्स्ट वी विल सी दैट व्हाट आर द डिफरेंट थ्रेट टू डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम, कि क्या क्या खतरे हैं इकोसिस्टम को ना, व्हाट आर द थ्रेट, कि क्या क्या उसको खतरे हैं। सो थ्रेट टू डिफरेंट इकोसिस्टम्स कॉज्ड बाय ह्यूमन, कि मनुष्य से उसको क्या क्या नुकसान है जो पारिस्थितिकी तंत्र है। एज ह्यूमन पॉपुलेशन एंड पर कैपिटा कंजम्पशन ग्रोज, अब धीरे धीरे क्या है, इंसानों का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और पर कैपिटा कंजम्पशन जो खपत है मेरी प्रति व्यक्ति वो भी बढ़ रही है। सो डू द रिसोर्सेज डिमांड्स इम्पोज्ड ऑन इकोसिस्टम एंड द इफेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अब देखिए इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है ना, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट the minimum amount or the amount of natural resources, air, water, soil, required by every human being on this earth, that is called as ecological footprint, right, कि क्या आप उसको यूज कर रहे हैं, right, तो this is called as ecological footprint। और इसी के बेसिस पे हम देखते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है, जो हमें देखने को मिलता है कि हर एक किसी जो ह्यूमन बीइंग, जो एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ, they have a footprint, right? तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की जब आप बात करते हैं, जो मतलब क्वांटिटी ऑफ नेचर इट टेक्स टू सपोर्ट द पीपल और इकोनॉमी,
राइट। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को आप वैसे भी अगर देखें, जो भी डिमांड रहती है, ठीक है, बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव स्पेस हो, ठीक है, कितना चाहिए आपको, ठीक है ना, मतलब जितना भी आपको लैंड वाटर, ठीक है, इंडिविजुअली रिक्वायर्ड है, वो सारा सारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पे आएगा, ठीक है, कंजम्पशन की दृष्टि से कि कितना आप इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो नेचुरल रिसोर्सेज आर वैल्यूएबल, वनरेबल एंड लिमिटेड। तो काफी ज्यादा नेचुरल रिसोर्स हमारे वनरेबल होते हैं और लिमिटेड है, गिवन क्वांटिटी में है, अनलिमिटेड नहीं है। द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस आर बिकमिंग मोर अपरेंट। काफी ज्यादा अभी जो ह्यूमन इंटरवेंशन है नेचुरल रिसोर्स में बढ़ गई है। प्रॉब्लम फॉर ऑल द इकोसिस्टम इंक्लूड, क्या क्या है प्रॉब्लम, देखिए क्या क्या इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्या क्या चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, ध्यान से देखिएगा। एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज वन ऑफ देम। जो प्रदूषण है आपका, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, किसी भी तरह का पोल्यूशन जो है वो उसको हार्म करेगा, व्हाट वेदर यू टॉक अबाउट एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। देन क्लाइमेट चेंज, जो आपका जलवायु परिवर्तन हो रहा है, राइट, एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस, जो आपकी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, जैव विविधता जो नष्ट हो रही है उसकी वजह से। तो दीज थ्री आर द मेजर थ्रेट जो इकोसिस्टम फेस कर रहे हैं आप। फॉर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम फर्दर थ्रेट्स इंक्लूड एयर पोल्यूशन, जो मैंने आपको बताया वायु प्रदूषण की वजह से, सॉइल डिग्रेडेशन, ठीक है, जो मृदा का आपका प्रदन हो रहा है, देन डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन जो आपके ट्रीज कम हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन और मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन। फॉर एक्वेटिक इकोसिस्टम कौन कौन से थ्रेट हैं? For aquatic ecosystem, threat include also unsustainable exploitation of marine resources. For example, overfishing of certain species. अब क्या बहुत ज्यादा आप फिश को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उसके बाद मरीन पोल्यूशन, जो आपका जितना भी ओशियंस और सी में पोल्यूशन जा रहा है, सारा वाटर पोल्यूशन, ठीक है, ऑयल पोल्यूशन। देन माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन, जो आपकी माइक्रो प्लास्टिक या थिन प्लास्टिक है बहुत, जो बायोडाइवर्सिटी को हमारे बहुत ज्यादा हार्म कर रही है, वो भी एक प्रॉब्लम का problematic चीज है for the biodiversity, right, because it cause various threats to all the species, ठीक है। then water pollution is one of them, जो आपका जल प्रदूषण है। the warming of oceans, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो oceans हमारे वार्म होते जा रहे हैं डे बाय डे। and building on coastal areas, और कोस्टल एरियाज में जो आपकी डेवलपमेंट हो रही है उसकी वजह से भी जो ओशियनिक बायोडाइवर्सिटी है या ओशियन बेस्ड इकोसिस्टम है, मरीन इकोसिस्टम है, दे हैव सर्टेन issues with that, right, so that is problematic. Then society is increasingly become aware about that ecosystem services are not only limited but also that they are threatened by human activity. अब जो भी हमारा पारिस्थितिकी तंत्र हमें सेवाएं प्रदान करता है, इकोसिस्टम जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है ह्यूमन बीइंग को या ऑल द अदर स्पीशीज which are living on this earth, they need to be better consider long term ecosystem health and is a role in enabling human habitation and economic activity is urgent. तो हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारा लॉन्ग टर्म के लिए जो हमारी इकोसिस्टम की हेल्थ है, जो पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य है, राइट, एंड इट मेक्स फिजिबल द ह्यूमन हैबिटेशन, मींस मनुष्य के रहने के लिए वो सब कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी हमारी उससे हेल्प हो रही है, टू हेल्प द इन्फॉर्म डिसीजन मेकर, जो पॉलिसी मेकर है, डिसीजन मेकर है, मेनी इकोसिस्टम सर्विसेज आर बीइंग असाइन इकोनॉमिक वैल्यूज, उसको हम इकोनॉमिक वैल्यूज असाइन करते हैं बेसिकली, जो भी हमारी इकोसिस्टम सर्विसेज होती है, राइट। हालांकि उसका कोई प्राइस नहीं हो सकता, बट स्टिल वी पुट अप अ प्राइस ओवर दैट, एंड ऑफन बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट विद एंथ्रोपोजेनिक अल्टरनेटिव, की अगर लेट अस सपोज करिए कि जैसे ट्रीज आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्रेश ऑक्सीजन, और आप ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीद रहे हैं एक 10 लीटर का या 11 लीटर का, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट? So we can take a replacement cost, that how much it costs to have this much oxygen in the pure form. The ongoing challenge for prescribing economic values, अभी हमारे सामने challenges क्या है? Prescribing the economic value, prescribing the economic value to nature, for example through biodiversity banking,
is promoting transdisciplinary shifts is how we recognize and manage the environment. Social responsibility कैसी है हमारी, जो सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, एंड आवर फ्यूचर एज अ स्पीशीज. तो ये सब चीजें हमें उसको देखनी पड़ेगी, राइट. कि बायोडाइवर्सिटी बैंकिंग की अगर बात करें कि ऑर्गेनिजम्स का भी एक रोल है, everything have a role in biodiversity, right. All the things which are present on earth surface. Now let's talk about these ecosystem services, right. This is a very important thing. So ecosystem services की अभी बात कर लेते हैं. So ecosystem services या पारिस्थितिकी तंत्र जो हमें सुविधाएं प्रदान करता है, सर्विस प्रदान करता है, right. An ecosystem is a group of community composed of living and non-living things. ये मैं आपको बता ही चुका हूँ. Living things में आपके producers, consumer and decomposer आ जाएंगे, and non-living thing में आपके abiotic component आ जाएंगे, जैसे air, water, soil, etc. And their interaction with each other, and it's a dynamic complex of biotic component जो मैंने आपको बताया, जैविक जिसमें producer, consumer, decomposer ये हम कर चुके हैं. And abiotic component जो मैंने आपको बताया, जैसे air, water, soil, अजैविक जिसको आप कहते हैं. The biotic and the abiotic interaction maintain equilibrium in the ecosystem. ये समन्वय बना के रखते हैं, उसमें equilibrium बना के रखते हैं. We as a human are integral part of it. The numerous benefits are obtained from the ecosystem are known as ecosystem services. जो भी हमें benefits मिलते हैं किसी भी ecosystem से या पारिस्थितिकी तंत्र से, ठीक है, जो भी हम benefit मिल रहे हैं हमें as a species, right, and whatever benefits we are deriving, they are referred to as ecosystem services, right. उसे पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं भी आप कह सकते हैं कि क्या क्या वो सेवाएं प्रदान करते हैं, राइट. सो ऑल ऑफ यू नो दैट द अर्थ इज अ होम ऑफ मिलियंस ऑफ स्पीशीज है, लाखों स्पीशीज है अर्थ के ऊपर, ठीक है. एवरी ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिजम्स फॉर एनर्जी, सर्वाइवल एंड अदर लाइफ प्रोसेस, एंड दिस dependence of organisms on one another and their surrounding makes an interacting system called as ecosystem. इसी को आप बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र or ecosystem. The interaction among different components of ecosystems are fundamental to well-defined environment. ये भी एकदम true है. As a part of ecosystem, अगर हम ऐसे naturally देखें, as a part of ecosystem, क्योंकि हम भी एक species हैं, human being as a species. So as a part of an ecosystem, human derives lots of benefit from the biotic and abiotic component. हम जैविक और अजैविक जो कंपोनेंट है नेचर के, उनसे बहुत सारी चीजें हम लेते हैं. फॉर एग्जांपल बायोटिक में से प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर आपके आ गए, वहां से हमें बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं. एबायोटिक्स जैसे आपके सॉइल, राइट, सनलाइट, वाटर, ये सब. सो द बेनिफिट्स आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज इकोसिस्टम सर्विसेज. इन्हीं को हम इकोसिस्टम सर्विसेज या पारिस्थितिकी सेवाएं कहते हैं. लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन दीज सर्विसेज. बिना इकोसिस्टम सर्विसेज के लाइफ फिजिबल नहीं है for none of the species and not even for the human being, whatever it is. So ecosystem services are classified into 4 types. 4 तरह की ecosystem services हैं आपकी स्पेशली, right. The first is provisioning services. जैसे provisional store होते हैं ना आपके, provisioning services, ठीक है. जैसे आपके essential services की दुकान होती है, जैसे आप आटा खरीद रहे हैं, चावल खरीद रहे हैं, चीनी खरीद रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारी provisioning services हैं जो जरूरत की चीजें होती हैं. दिस इंक्लूड्स द प्रोडक्ट और द रॉ मटेरियल और एनर्जी आउटपुट्स लाइक फूड, जैसे खाना मिलता है हमें, सब्जी मिली, फल मिले वहां से, वाटर मिला, मेडिसिनल प्रोडक्ट मिलते हैं बहुत सारे प्लांट से हमें. अनदर रिसोर्सेज फ्रॉम इकोसिस्टम्स. इकोसिस्टम्स आर सोर्स ऑफ फूड, खाने का भी सोर्स है हमारे, वाटर, मेडिसिन, वुड, लकड़ी का, बायोफ्यूल जो चलाते हैं, एंड दे आल्सो प्रोवाइड कंडीशंस फॉर दीज रिसोर्स टू ग्रो. और ये उसको ग्रो करने के लिए कंडीशंस भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब ऐसी कंडीशंस बनाएंगे कि ये चीजें ग्रो करें जहां से ज्यादा नेचुरल चीजें हैं, राइट. तो ये प्रोविजनरी सर्विसेज में आएगा आपका. सेकंड टाइप ऑफ सर्विसेज जो है आपकी वो रेगुलेटिंग सर्विसेज है. सेकंड टाइप ऑफ सर्विसेज जो है आपकी वो रेगुलेटिंग सर्विसेज है, राइट. ये रेगुलेटिंग सर्विसेज में क्या आता है? दिस इंक्लूड द सर्विसेज व्हिच रेगुलेट द इकोलॉजिकल बैलेंस. फॉर एग्जांपल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, जैसे लाइक फॉरेस्ट, प्यूरिफाई, तो ये रेगुलेट कर रहे हैं हम, ठीक है, मतलब प्रबंधन कर रहे हैं उसका, ठीक है. जो सेवाएं ऐसी हैं जो प्रबंधन, मैनेजमेंट टाइप का, ठीक है, रेगुलेट कर रहे हैं उसको. फॉरेस्ट जो है आपका प्यूरिफाई करता है, मतलब वो फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है,
and regulate air quality forest, prevent soil erosion, मृदा अपरदन को भी बचाते हैं, and control greenhouse gases. ठीक है, जो भी आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं जैसे CO2 है, मीथेन है, N2 है, तो उनको कंट्रोल में रखते हैं. बायोटिक कंपोनेंट सच एज बर्ड, रैट, फ्रॉग, ये सब जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर में आएंगे, एक्ट एज अ नेचुरल कंट्रोलर, ये भी नेचुरल कंट्रोल करते हैं, एंड दस हेल्प इन पेस्ट एंड डिजीज, जो भी आपके पेस्ट होते हैं, ठीक है, एंड डिजीज कंट्रोल में बहुत हेल्प करते हैं, बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल में रखते हैं. एंड इकोसिस्टम एक्ट एज अ रेगुलेटर, तो इकोसिस्टम रेगुलेटर की तरह भी काम करता है. और ये सारी सर्विसेज जो है हमारी वो रेगुलेटिंग सर्विसेज में आती है. ऑल दी सर्विसेज fall under the category of regulating services, right? So this was another type of ecosystem services. Then next is supporting services. ठीक है, कि सपोर्ट करती है जो सर्विसेज हमें. So supporting services from the basis of other services, they can provide habitat for different life forms. अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स को, स्पीशीज को वो हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, रहने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं. रिटेन द बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को रिटेन करती है, जैव विविधता को रिटेन करती है. न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जिसको हम पढ़ चुके हैं, पोषक तत्वों का चक्रण, डिफरेंट साइकिल्स, कार्बन साइकिल्स, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. अदर सर्विसेज फॉर सपोर्टिंग द लाइफ ऑन द अर्थ. तो ये सारी की सारी सर्विसेज आपकी सपोर्टिंग सर्विसेज में आती है. देन वी हैव कल्चरल सर्विसेज. कल्चरल सर्विसेज की बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा. कल्चरल सर्विसेज की बात करेंगे, ठीक है. कल्चरल सर्विसेज में क्या क्या आता है आपका? इट इंक्लूड टूरिज्म, जैसे कि आप बायोडाइवर्सिटी पार्क देखने के लिए गए, नेशनल पार्क देखने के लिए गए, जू देखने के लिए गए. इट प्रोवाइड रिक्रिएशनल, एस्थेटिक, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सर्विसेज. मोस्ट नेचुरल एलिमेंट्स सच एज लैंडस्केप, माउंटेन, पहाड़ है, केव्स है, गुफाएं हैं, आर यूज्ड एज अ प्लेस फॉर कल्चरल एंड आर्टिस्टिक पर्पस. तो इस तरह से इस्तेमाल होती है. इवन अ फ्यू ऑफ देम आर कंसिडर्ड सेक्रेड, उसको पूजते हैं लोग, जैसे सेक्रेड ग्रुप्स का एग्जांपल है. मोर ओवर, इकोसिस्टम प्रोवाइड इनॉर्मस इकोनॉमिक बेनिफिट इन द नेम ऑफ टूरिज्म. और टूरिज्म से बहुत सारा रेवेन्यू आता है, उसका जीडीपी हमारी कंट्री का उससे बढ़ता है. अगर टूरिज्म अच्छा है तो काफी ज्यादा हमारी इकोनॉमी को भी बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, राइट. देन द प्राइस ऑफ टैगिंग, then the price of tagging of ecosystem and their services is quite unfeasible, right. ये इतना इजी नहीं है कि आप इकोसिस्टम का प्राइस रख सको. इट कुड बी एनीथिंग, राइट. हम एक अप्रोक्सीमेट प्राइसिंग उसका कर सकते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट की फॉर्म में, बट इट इज नॉट इजी. हर किसी चीज पे आप प्राइस नहीं रख सकते. आप ये नहीं बता सकते कि सीनिक बीटू की क्या वैल्यू है. सो अमंग ऑल द इकोसिस्टम सर्विसेज, सपोर्टिंग सर्विसेज जो आपकी जो हमने पढ़ी है, along contribute about 50%. 50% तो उसमें सपोर्टिंग सर्विसेज ही है, एंड द रेस्ट ऑफ द सर्विसेज अकाउंट फॉर लेस देन 10% इन द सेम. तो 50% आपकी सपोर्टिंग सर्विसेज आती है. सर जैसे सपोर्टिंग सर्विस हमने यहाँ पढ़ी थी ना, they provide habitat for different life forms, retain biodiversity, nutrient cycling and other services, and rest of the services are in 10%. 10% contribution जो है other services का है. So with this our ecosystem services is also over, and hope you are enjoying these lecture and they are helping you out to understand the subject well. Keep working hard, and with this your unit number 2 ecosystem is over. Now we will come with the next unit in series. The next unit we will start as early as possible. Thank you very much for your support. Thank you very much for like watching us and liking us and subscribing us. Keep working hard for the subject. Thank you.